So, very good morning to all of you. This is class number 2 of Intercorporate Investments. Vivek, Nayan, others who have joined. So, अपने start किए थे discuss करना investment in financial assets. They could be bond investments, they could be equity investments. Bond investments का discussion हो गया था कि the accounting for investment in financial assets will depend upon whether we satisfy the cash flow test and the business model में अपने क्या कर रहे हैं. लास्ट में एक पॉइंट बोला था, इफ द कैश फ्लो टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, which means the bond is not being invested for contractual principal and interest cash flows. In that case, inevitably, you will use FVTPL, fair value through PL account, because it's too complicated. It's better that the balance sheet and the PL both show economic reality. But if the cash flow test is satisfied, the bond is primarily providing interest and principal, and the intent is to hold and collect. In that case, amortized cost, the intention is to collect and sell. FVOCI, the intention is to trade. FVTPL. ये डिस्कशन लास्ट क्लास हुआ था. We move on to equity. If A is investing in the equity shares of B, if A is investing in the equity shares of B, but it is minority passive. Minority passive का काफ़ी डिस्कशन हो गया था कि A doesn't have an influence on B's policies. B का financial policy, B का operating policies में A का influence नहीं है. Usually less than 20% stake implies no influence. But even more than 20% stake पे भी हो सकता है significant influence नहीं हो. ये discussion कल हो चुका था. So if there is no significant influence, so in that case the accounting in the books of A will be either as per FVOCI or as per FVTPL. Either FVOCI or FVTPL. There is no question of amortized cost, because amortized cost तो held to maturity के लिए होता है ना. amortized cost तो held to maturity के लिए होता है, बट यहाँ पे तो held to maturity का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो इक्विटी में इट्स ईदर FVOCI और FVTPL. If A does not elect to use FVOCI, by default it will be FVTPL. Very important. If A does not choose, does not elect to use FVOCI, it will be FVTPL. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट FVTPL है, बट A में चूज, ओके, एक्सप्लेन इट्स बिजनेस मॉडल एंड से दैट yes, I want to use FVOCI because I don't want to actively trade in the same. Is this clear? Maitra Patel, Shashwat, Nayan and Vivek. A ने B के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, एमोटाइज कॉस्ट मेथड होता ही नहीं है. मेथड होता है या तो FVOCI या FVTPL. अगर FVOCI यूज़ करना है, आपको PL को डांस नहीं करवाना है, PL में छुपाना है, तो आपको साफ साफ शुरू में इलेक्ट करना पड़ेगा कि वी वांट टू यूज़ FVOCI. बट इफ़ यू डू नॉट इलेक्ट, इन दैट केस इट्स FVTPL. ठीक है, FVTPL का मतलब क्या है वो तो अपने को पता ही है. देयर इज नो इशू. जो डिविडेंड है, जो ही मेथड यूज़ करे, जो डिविडेंड है वो तो PL में आएगा ही. डिविडेंड इनकम जो रिसीव करेंगे PL में आएगा ही इरिस्पेक्टिव. जो रियलाइज्ड गेन है, रियलाइज्ड गेन बेचेंगे तो रियलाइज्ड गेन या रियलाइज्ड लॉस वो तो PL में आएगा ही, चाहे जो भी करे. बट जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस उसका बात हो रहा है. अनरियलाइज्ड गेन और लॉस जो है वो FVTPL में PL में आएगा और FVOCI में वो इक्विटी के अंदर जाएगा. करेक्ट है. द इक्विटी इन द बैलेंस शीट विल बी शोन एट फेयर मार्केट वैल्यू. सो दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. क्लियर है? ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. एक बार ब्रीफली लिख लेते हैं. लेट्स राइट इट डाउन इन ब्रीफ. ज़रा सा नोट डाउन किया रहेगा. इट जस्ट प्रोवाइड्स दैट एक्स्ट्रा कुशन. ओके, 1 सेकेंड. Investment in equity bracket no significant influence अकाउंटिंग या तो FVOCI या फिर FVTPL. बाय डिफॉल्ट, ओके, बाय डिफॉल्ट इट्स FVTPL, but firm may elect to use FVOCI.
फर्म में इलेक्ट टू यूज़ FVOCI। तो इट्स वेरी सिंपल, इक्विटी में तो ज़्यादा झमेला ही नहीं है। मैंने फर्दर बोला इसका मतलब क्या है, जो डिविडेंड इनकम है वो तो PL में आना ही है, जो रियलाइज गेन और लॉस है वो भी PL में आना ही है, पर जो अनरियलाइज गेन और लॉस है वो FVTPL में PL में आएगा और FVOCI में वो इक्विटी के अंदर OCI में चला जाएगा। करेक्ट है, एकदम सिंपल है, विदाउट एनी स्ट्रेस एट ऑल। when you are revising later on, it should hardly take you 2-5 minutes to get over this portion. Now, although stressed नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। In the case of equity, once you decide upon a certain method, FVOCI या FVTPL, change of method is not allowed. In the case of equity, once you decide upon a certain method, the change of method is not allowed. कि मेरा FVTPL था बट अब से मेरा मन है FVOCI, नॉट अलाउड, सिंपल। इन द केस ऑफ बॉन्ड, कल जो किए थे बॉन्ड, उसमें चेंज ऑफ मेथड इज अलाउड। इन द केस ऑफ बॉन्ड द चेंज ऑफ मेथड इज अलाउड। आर यू क्लियर? केवल FVTPL से FVOCI अलाउड नहीं है इन द केस ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड में 3 मेथड है ना, एमोटाइज्ड कॉस्ट, FVOCI, FVTPL। तो एमोटाइज्ड कॉस्ट कर रहे थे सर हम लोग, क्या FVOCI कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इफ़ यू शो दैट योर बिजनेस मॉडल हैज़ चेंज्ड। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बिजनेस मॉडल हैज़ चेंज्ड। तो एमोटाइज्ड कॉस्ट टू FVOCI अलाउड, FVOCI टू FVTPL अलाउड, amortized cost to FVTPL allowed, FVOCI से amortized cost allowed, FVTPL से amortized cost allowed, FVTPL से FVOCI not allowed। मेरे को याद नहीं है बुक में इतना दिया हुआ है क्या डिटेल्ड में, बट बेसिकली बॉन्ड में यू कैन चेंज इफ़ योर बिजनेस मॉडल चेंजेस, केवल एक तो चेंज अलाउड नहीं है FVTPL से FVOCI। ठीक है, क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज इन्होंने पास्ट में देखा है कि जो लोग FVTPL से FVOCI चेंज करते हैं ना, वो लोग गेमिंग कर रहे हैं ऑपरचुनिस्टिकली। देखा कि बहुत फ़ायदा हो रहा है बॉन्ड में, चल इसको अपने सॉरी घाटा हो रहा है बॉन्ड में, चल इसको अपने FVOCI ले जाते हैं जिससे PL में लॉस दिखाना नहीं पड़ेगा। सो दे डोंट अलाउ FVTPL को FVOCI में चेंज करना इन द केस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये मेरे को ध्यान है, जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे को याद है ना, याददाश्त वाइज मेरे को बाई चांस रॉन्ग हो सकता है, बट आई थिंक मैंने ये रीडिंग किया था। ठीक है, तो वॉट एवर आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ रिमेंबरेंस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी आई कैन मेक अ मिस्टेक एंड आई डोंट नो कोर में कितना डेप्थ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं जनरली ये सब चीज़ों को पढ़ते समय ज़्यादा कोर को फॉलो नहीं करता बिकॉज कोर इज़ वेरी वेरी शैलो इन दिस रिगार्ड। जो CPA का बुक्स है उसको देख के आई यूजुअली लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। एनीवेज, क्या लिखा मैंने? चेंज ऑफ मेथड, चेंज ऑफ मेथड नॉट अलाउड। इक्विटी में चेंज ऑफ मेथड नॉट अलाउड। बॉन्ड में कल का भूल गए, बॉन्ड में चेंज ऑफ मेथड is allowed, change of method is allowed, but FVTPL to FVOCI not allowed, FVTPL to FVOCI not allowed। ओके, चेंज ऑफ मेथड इज़ अलाउड बट FVTPL टू FVOCI नॉट अलाउड। मेरे को यही ध्यान आता है, बट आई एम हम्बल इनफ टू एडमिट दैट अगर मेरे से मिस्टेक हुआ तो मैं इसको वापस से करेक्शन करवाऊंगा। ठीक है ना? ओके, गिवन दिस एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के पहले एक दो और चीज़ बता दूं। जैसे इफ़ यू लुक एट द कोर, अगर अपने कोर पे जाएं, या सो लुक एट द कोर। कोर में बोल रहा है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर अंडर IFRS फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, जो अपने कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, स्पेशल पर्पस एंड वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटीज। मैंने ये पांचों बोला था। एंड इफ़ यू विल सी, ये पांचों का ही बात LOS नंबर B में है, पर वहाँ पे IFRS वर्सेस US गैप का डिफरेंस पूछ रहे हैं, और LOS C में पूछ रहा है ये जो आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने वाले हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियोज में। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट दे केप्ट द LOS लाइट।
थर्ड वाला जो है वो इम्पैक्ट पूछ रहा है क्या होगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियोज। सेकेंड वाला IFRS एंड US गैप का डिफरेंस पूछ रहा है, और फर्स्ट वाला बोल रहा है समझाओ ना ये सारे मेथड्स पे क्या करते हैं। तो क्या हम लोग सारे मेथड्स को समझा चुके हैं? एकदम ही नहीं, वी हैव नॉट डन दैट। पर एक बार प्राइमा फेशिया बता दूं, सुनना प्लीज़। और प्राइमा फेशिया समझने के आप लोग लायक हो, और इनफैक्ट वो जो प्राइमा फेशिया ऊपर से व्यू समझते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू कॉमा फुल स्टॉप। मैंने बोला था कि इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स के अलावा जो बाकी का इन्वेस्टमेंट्स है दे आर स्ट्रैटेजिक इन नेचर। इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स के अलावा जो बाकी का इन्वेस्टमेंट्स है दे आर स्ट्रैटेजिक इन नेचर। सर स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या हुआ? स्ट्रैटेजिक का मतलब हुआ कि हम उनका जो प्राइस है ना, जो मैंने इन्वेस्ट किया है दूसरे कंपनी में इन्फ्लुएंस के लिए या कंट्रोल के लिए, तो उसका जो शेयर का दाम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। दे आर स्ट्रैटेजिक इन नेचर। तो उसका शेयर का दाम जो अप एंड डाउन जा रहा है उसके हिसाब से बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा इन ऑल द केसेस अदर देन इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स। समझ गए? सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कि बाकी मेथड्स में अपने जो मार्केट प्राइस है ना उसका, कंपनी बी के शेयर्स का, उसके हिसाब से कुछ नहीं होगा। ठीक है? होगा क्या? होगा ये कि अगर हम बी को कंट्रोल करते हैं, इफ़ ए इज़ कंट्रोलिंग बी, यानी बी में जो होगा वो हम डिसाइड करते हैं, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल। इट हैपन्स व्हेन यू एक्वायर मोर देन 50% ऑफ कंपनीज बी। कंपनी बी का मोर देन 50% आपके पास है, इट्स अ 100% सब्सिडरी और अ 75% सब्सिडरी, देन यू आर द मेजर पर्सन। यू से व्हाट विल हैपन व्हाट विल नॉट। अगर ऐसा है तो इन दैट केस कंसोलिडेशन, फुल कंसोलिडेशन, फुल कंसोलिडेशन मेरे ख्याल से नाम से पता चल रहा होगा, उसका पूरा का पूरा एसेट्स और लायबिलिटीज़ अपने बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। कंसोलिडेशन, उसका पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट अपने इनकम स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा बैलेंस शीट अपने में ऐड हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट अपने में ऐड हो जाएगा। ओके, कंसोलिडेशन। सर बट अगर अपना ओनरशिप उसमें 100% नहीं हुआ, 75% हुआ, तो उसका पूरा अपने 100% कैसे ले सकते हैं? डोंट वरी, अपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से दिखा देते हैं उस केस में कि भाई हमने ऐड पूरा कर दिया है इनकम और एसेट्स लायबिलिटीज़, बट 25% तो माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, वो हम लोग अलग से दिखा देते हैं बैलेंस शीट और PL में। आई मोटा मोटी समझ रहे हैं? मोटा मोटी समझ रहे हैं? In the case of control, we do full consolidation. The assets and the liabilities get added, okay, to our balance sheet, consolidated income statement में our income statement plus their income statement, तो पूरा का पूरा इंटीग्रेट हो गया, जिससे होलिस्टिक पिक्चर मिल रहा है, एंड अलग से माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखा देते हैं। ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन। इवन इन द केस ऑफ जॉइंट वेंचर, इवन इन द केस ऑफ जॉइंट वेंचर, जेवी के केस में हम लोग यही करते हैं। ऑल्दो जॉइंट वेंचर में शेयर्ड कंट्रोल है, जॉइंट वेंचर में कंट्रोल नहीं है, जॉइंट वेंचर में शेयर्ड कंट्रोल है, विच मीन्स दैट जो जॉइंट वेंचर पार्टनर्स है सबके बोलने पे कुछ होगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन में अपना एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, जॉइंट वेंचर में शेयर्ड कंट्रोल है, पर उसमें भी वी अप्लाई फुल कंसोलिडेशन मेथड, full consolidation method. Okay, although US gap in extreme cases proportionate consolidation method allow कर रखा है, पर वो in rare cases मतलब आजकल करता ही नहीं है। proportionate consolidation क्या हो समझा? सपोज मेरा एक JV में 50% स्टेक है, 50-50 JV है, 50% स्टेक है, तो उसका एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का 50% लेंगे, उसका सेल्स का 50% अपने सेल्स में मिलाएंगे, उसके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 50% अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलाएंगे, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से दिखाना नहीं पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, एक हो गया फुल कंसोलिडेशन, एक प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। तो फुल कंसोलिडेशन में उसका पूरा का पूरा एसेट्स और लायबिलिटीज़ मिला देते हैं, और प्रोपोर्शनेट में अपना जितना स्टेक है ना 50% उतना मिलाते हैं, तो उसमें अपने को माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाना नहीं पड़ता है। ये पहले बहुत पॉपुलर था, अब IFRS तो अलाउ ही नहीं करता है, यानी हमारे आएगा ही नहीं। जस्ट जानने के लिए US गैप इसको रेयर केसेस में अलाउ करता है, जहाँ उसको लगता है बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, तो JV एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अबाउट कंट्रोल एंड शेयर्ड कंट्रोल। ठीक है ना? इन द केस ऑफ, मैं शायद ये बोल दिया, मैंने शायद ये बोला कि IFRS में JV में फुल कंसोलिडेशन करते हैं, तो रॉन्ग बोल दिया। ठीक है? IFRS में JV में फुल कंसोलिडेशन नहीं करते, IFRS में और US गैप दोनों में बिजनेस कॉम्बिनेशन में
फुल कंसोलिडेशन करते हैं, फुल कंसोलिडेशन। तो सर जेवी में क्या करते हैं आईएफआरएस में? जेवी में आईएफआरएस में एंड एसोसिएट्स के केस में आईएफआरएस में दो बचा ना, एक एसोसिएट्स और एक जेवी। एसोसिएट्स कौन सा हुआ? वे you do not control the other firm but you have a significant influence on the policies of the other firm, where you do not control the other firm but you have a significant influence on the policies of the other firm. So if you have a significant influence because of board representation, ओके, और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स, तो अगर आपका इन्फ्लुएंस है जो कि 20 to 50 के बीच में माना जाता है कि 20% से ऊपर स्टेक है 50 के नीचे, तो वी प्रिज्यूम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। 20% से ऊपर स्टेक है 50 के नीचे, वी एज्यूम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर अगर जेवी है जेवी, तो उस केस में आईएफआरएस रिक्वायर्स द यूज ऑफ इक्विटी मेथड। IFRS requires the use of equity method. Which method? Equity method. Equity method. Equity method क्या हुआ? वो जो कंपनी है फर्म बी, उस फर्म बी का जो इनकम है, इनकम, वो इनकम का 30% मैं अपने पीएल में स्ट्रेट अवे दिखा दूंगा, लाइन बाय लाइन ऐड नहीं करूंगा, सेल्स सीओ जीएस नहीं ऐड करूंगा। उसकी कंपनी में मेरा 30% स्टेक है, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है उसका 30% मैं अपने इनकम में मान लूंगा। तो सिंगल लाइन एडजस्टमेंट, सिंगल लाइन, नॉट कंसोलिडेशन, सिंगल लाइन एडजस्टमेंट। ठीक है। बैलेंस शीट में भी अपने ए फर्म बी में इन्वेस्टमेंट दिखाएगा, इन्वेस्टमेंट इन फर्म बी, कितना जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसमें ऐड करेगा 30% ऑफ इनकम और लेस करेगा डिविडेंड। ओके, दिखाएगा जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ऐड करेगा 30% ऑफ इनकम कि मैं पाता हूँ, और लेस करेगा जो डिविडेंड मिल गया। ओके, सो दैट इज व्हाट इट डन। ऑफ कोर्स मैं ठीक से कराऊंगा, मेरा बोलने का मतलब था इसमें कंसोलिडेशन नहीं होता है, सिंगल लाइन इन द बैलेंस शीट, सिंगल लाइन इन द पीएल अकाउंट, उसके हेल्प से अपने एक्नॉलेज करते हैं कि फर्म बी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो इक्विटी मेथड, कौन सा मेथड? इक्विटी मेथड। तो इक्विटी मेथड इज सिंगल लाइन एडजस्टमेंट एंड देन वी हैव फुल कंसोलिडेशन। तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन आईएफआरएस में तो है ही नहीं। यूएस गैप में जेवी के केस में, एक्सट्रीम केसेस में प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है, तो एक बार ये लिख लें, बिकॉज ये एक बार ओवरऑल आर्किंग आइडिया हो गया। तो क्या लिखे हम लोग? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन जेवी, इन्वेस्टमेंट्स इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। जो स्पेशल पर्पस एंटिटी है और वेरिएबल इंटरेस्ट एंटिटी है, उसका डिस्कशन अभी नहीं हो सकता है, वो अलग से होगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स में वी अप्लाई इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड एक बार के लिए कैसे याद रखें यार, एक सिंगल लाइन एडजस्टमेंट कर देते हैं अपने पीएल में, उसका जो इनकम उसका 30% आ जाएगा, अपने बैलेंस शीट में जो हम लोग इन्वेस्ट किए हैं प्लस जो हमारा इनकम आना चाहिए माइनस डिविडेंड, वो आ जाता है। ठीक है, तो इक्विटी मेथड, इक्विटी मेथड में इनकम स्टेटमेंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर 30% ऑफ एनआई ऑफ बी, मैं 30% ऐसे ही लिख रहा हूँ। बैलेंस शीट के अंदर वी अप्लाई द बेस मेथड, मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, बेस मेथड। बेस मतलब बिगिनिंग ऐड सब्सट्रैक्ट एंडिंग, बिगिनिंग ऐड सब्सट्रैक्ट एंडिंग, मतलब हम जब इन्वेस्ट किए तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट किए थे उसमें, इस साल जो इनकम हुआ उसका 30% मेरे को बिलोंग करता है, वो अक्रू हो गया। उसके अलावा मैंने डिविडेंड रिसीव किया उससे, तो माइनस हो गया, बचा एंडिंग बैलेंस। BASE, बिगिनिंग ऐड सब्सट्रैक्ट एंडिंग। स्टूपिड है, but sometimes it helps in the context of so many things going on. Base method, beginning, add, subtract or ending. Okay, base method. Joint venture, उसमें भी we use equity method. Joint venture में भी equity method, इसमें we use full consolidation. Full consolidation. Business combination is a case of control. Joint venture is a case of shared control. Associates is a case of significant influence. So investment in associates where there is significant influence, equity method.
इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर विद ए शेयर्ड कंट्रोल इक्विटी मेथड, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस कॉम्बिनेशन जहाँ ये है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में यूजुअली 20 to 50% के बीच का बात हो रहा है। यहाँ पे ग्रेटर देन 50%, सॉरी यहाँ पे भी कांड से जेवी 2 पार्टी के बीच में कि 3 पार्टी के बीच में कांड से कंट्रोल में ग्रेटर देन 50% का बात हो रहा है। जेवी में कितना स्टेक होगा बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या पता 3 पार्टीज मिलके जेवी किए तो उनका सबका 1/3 स्टेक है, क्या पता 4 पार्टीज मिलके किए तो 25-25 स्टेक है, क्या पता 2 पार्टीज है 50-50 स्टेक है। तो जेवी में कितना ओनरशिप है वैसे बोलना डिफिकल्ट है, बट बाकी में इंडिकेटिव परसेंटेज दिया हुआ याद होगा। परसेंटेज ओनरशिप इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, इट इज जस्ट अ प्रिजम्पटिव फैक्टर इफ नथिंग इज गिवन टू द कॉन्ट्ररी। Okay, percentage ownership is not the deciding factor. It is just a presumptive factor if nothing is given to the contrary. Consolidation में assets, liabilities और income statement पूरा integrate होगा. Equity method में single line adjustment होगा. Single line adjustment. I know मैंने थोड़ा roughly लिखा है, but we are not sitting here for decoration. I have written roughly, but we are not sitting here for decoration. ठीक है? You must have got the stuff. एक और last point बोलना था. IFRS 9 वर्सेस IAS 39। तो IAS 39 में पोर्टफोलियो बकेट अप्रोच था। IAS 39 में पोर्टफोलियो, ये इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स का बात हो रहा है, फिर से इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट्स, पोर्टफोलियो बकेट अप्रोच का बात था। ओके, आइटम बाय आइटम नहीं देखते थे, कैटेगरी वाइज देखते थे। IFRS 9 में कैश फ्लो टेस्ट एंड बिजनेस मॉडल टेस्ट का बात हो रहा है। कैश फ्लो टेस्ट एंड बिजनेस मॉडल टेस्ट, होल्डिंग बाय होल्डिंग एक एक आइटम देखेंगे और उस पर कैश फ्लो टेस्ट बिजनेस मॉडल टेस्ट लगाएंगे। ये तो एक डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, प्लीज़ सुनिएगा। ये जो डिफरेंस है, पता नहीं ये टेस्टेबल है कि नहीं है, कोर में दिया हुआ है, बट कोर में ना बोल के भागा है, कोर में बोल के भागा है। दे हैव नॉट स्टेड ओवर देयर। होता है ना, कोई चीज़ को टच करके भाग गए। It will be actually revisited in learning module 4 analysis of financial institutions. Learning module 4 में फिर से आएगा, revisit होगा। यहाँ पे बोल के भागा है क्या, सुनना प्लीज। Banks are in the business of accepting deposits and making loans. Banks are in the business of accepting deposits and making loans. तो banks जो लोन देता है वो लोन तो डूब सकता है ना, तो banks को उसके अगेंस्ट में प्रोविजन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। बैंक्स आर इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड मेकिंग लोन्स। तो बैंक जो लोन्स देता है वो डूब सकता है, उसके अगेंस्ट पे प्रोविजन करना पड़ता है। एडवांसेस के अगेंस्ट पे प्रोविजन, जैसे हम लोग डेटर्स के अगेंस्ट पे प्रोविजन करते हैं ना नॉर्मल कंपनीज में, वैसे बैंक्स लोग का तो ये बिजनेस ही है, तो वो लोग को तो लोन्स के अगेंस्ट पे प्रोविजन करना पड़ता है। वो जो प्रोविजन करना पड़ता है उसका पहले एक मॉडल था विच वॉज इनकर्ड लॉस मॉडल। क्या मॉडल था? इनकर्ड लॉस मॉडल, INCURRED, इनकर्ड लॉस मॉडल, कि जब वो लॉस इनकर होगा तब जाके प्रोविजन करेंगे। इनकर्ड लॉस मॉडल। नाउ दे हैव मूव्ड टू एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, लुक एट द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। इनकर्ड लॉस मॉडल में पास्ट टेंस है, कुछ होने के बाद एक्शन। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल में फ्यूचर टेंस है, प्रोएक्टिवली प्रोविजन और रिजर्व बनाना। ओके, तो अब जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल है उसमें रूल ये है कि एक होता है परफॉर्मिंग एसेट, एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नाम सुना होगा एनपीएस का, सबने, सभी स्टूडेंट ने एनपीएस का नाम सुना होगा बैंक्स में। एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एन एसेट इज सेड टू बी नॉन परफॉर्मिंग इन इंडिया इफ इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days. An asset is said to be non-performing in India if it is overdue for 90 days. मेरे को जितना ध्यान है, भारत में अगर कोई एसेट है, कोई लोन दिया बैंक ने और इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का जो डेट था वो डेट में अगर पैसा नहीं दिया और 90 दिन बीत गया, वो एनपीए बन जाता है। ओके, मेरे ख्याल से भारत में 90 दिन का रूल है, ऑल्दो मैं टच एक एक लाइन से नहीं हूँ, बट 90 days का रूल है। तो जिस दिन पैसा ड्यू था, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, उस दिन नहीं दिया तो ओवर ड्यू हो गया, और उस दिन से 90 दिन बीत गया तो एनपीए बन जाता है। तो जो एनपीएस तो वो होता है, और परफॉर्मिंग एसेट कौन सा हो गया? जो रेगुलरली पैसा दे रहा है। तो जो परफॉर्मिंग एसेट है उसके ऊपर नेक्स्ट 12 मंथ्स का पीडी इंटू एलजीडी किया जाता है। पीडी इंटू एलजीडी नेक्स्ट 12 मंथ्स का, एंड उसका प्रोविजन किया जाता है।
Okay, expected loss for the next 12 months. In the case of नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लाइफ टाइम का, पूरे लाइफ टाइम ऑफ द एसेट का पीडी इंटू एलजीडी किया जाता है और वो प्रोविजन या रिजर्व क्रिएट किया जाता है. एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल. तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल में फॉर परफॉर्मिंग एसेट्स नेक्स्ट 12 मंथ्स का एक्सपेक्टेड लॉस, फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लाइफ टाइम का एक्सपेक्टेड लॉस. एक्सपेक्टेड लॉस सर लेवल 1 में पढ़ा हुआ है, पीडी इंटू एलजीडी. याद आ रहा है क्या लेवल 1 में पीडी इंटू एलजीडी फिक्स्ड इनकम में? याद आ रहा है क्या लेवल 1 में पीडी इंटू एलजीडी फिक्स्ड इनकम में? यस प्लीज, याद आ रहा है क्या लेवल 1 में पीडी इंटू एलजीडी फिक्स्ड इनकम में? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इंटू लॉस गिवन डिफॉल्ट. ध्यान आ रहा होगा? तो वही बोल रहा हूं. तो परफॉर्मिंग एसेट्स में 1 साल का पीडी इंटू एलजीडी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में लाइफ टाइम का पीडी इंटू एलजीडी वो किया जाता है. ठीक है. ऑल्दो जो कोई सीए स्टूडेंट्स होगा वो ये लोग ये करने के बजाय उन लोग को रटा दिया जाता है स्टैंडर्ड एसेट पे 0.25%. सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, डाउटफुल एसेट होता है, लॉस एसेट्स होते हैं. स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस. स्टैंडर्ड वो है जो परफॉर्मिंग एसेट है और सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस नीचे कैटेगरी के एसेट्स होते हैं. उस पर रूल है इतना से इतना साल हुआ है तो इतना प्रोविजन, इतना से इतना साल इतना प्रोविजन वगैरह वगैरह. तो अपने खैर वो सब नहीं अच्छा है, वी आर सेव्ड बाय इट. ठीक है. तो और एक डिफरेंस लिख देता हूँ. दूसरा डिफरेंस क्या है? IFRS 9 में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल है. एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल का मतलब हुआ फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट ऑफ EL. आपको मॉडल्स यूज़ करना पड़ेगा. फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट ऑफ EL. कौन सा मॉडल सर? अभी आप लोग लेवल 2 में पढ़ोगे फिक्स्ड इनकम के अंदर क्रेडिट रिस्क मॉडल्स है. रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल आपके फिक्स्ड इनकम में है. रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल. ओके. रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल तो इनफैक्ट वही है जो QM में लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे हैं, वही रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल है. लॉजिट मॉडल जिसको बोलते हैं. यू विल स्टडी ओवर देयर. ठीक है ना. तो फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट ऑफ EL, उसमें अपने इन द केस ऑफ परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट माने जो रेगुलरली पे कर रहा है, जो ओवरड्यू नहीं है. नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जो ओवरड्यू है. तो जो परफॉर्मिंग एसेट है उसमें EL फॉर 12 मंथ्स, जो एक्सपेक्टेड लॉस फॉर 12 मंथ्स है उसका प्रोविजन. नॉन परफॉर्मिंग एसेट में EL फॉर लाइफ टाइम, EL फॉर लाइफ टाइम, एक्सपेक्टेड लॉस फॉर लाइफ टाइम. आई होप आप EL समझ रहे हैं. EL इज PD इंटू LGD. कॉपी कर पाए? IFRS 9 में एक्सपेक्टेड लॉस मॉडल है फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस. परफॉर्मिंग एसेट में एक्सपेक्टेड लॉस फॉर 12 मंथ्स, उतने का रिजर्व या प्रोविजन क्रिएट होगा. एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो खतरनाक एसेट है उस पर एक्सपेक्टेड लॉस फॉर लाइफ टाइम, उसका PD इंटू LGD. ठीक है ना. और पोर्टफोलियो और इसके अंदर जो था ना पहले, दैट वाज इनकर्ड लॉस मॉडल. इनकर्ड लॉस मॉडल जिसमें लॉस होने के बाद उसका प्रोविजन करते थे देखते हुए. इनकर्ड लॉस मॉडल था, अब वो नहीं है. इट इज़ नॉट देयर नाउ. नाउ वी हैव शिफ्टेड टू द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल. तो ये लिखा हुआ है, डिग नहीं किया है, जस्ट लिख के भाग गए. तो लिख के भागा है तो दे वांट अस टू बी अवेयर ऑफ द सेम. करेक्ट. आई थिंक मैंने सब कुछ बोल दिया है. एक बार क्वेश्चंस देखते हैं. नॉट दैट चैप्टर खत्म हो गया, बट एक बार इन रिलेशन टू जो फाइनेंशियल एसेट बताना था और कैटेगराइजेशन. तो एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड. हाँ. सो वी आर कमिंग टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस पे आते हैं. आइए. दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन. Waldes AG is a European industrial conglomerate that holds equity interest in 4 companies. The CFO is reviewing how each position should be classified under IFRS. Classification पूछ रहे हैं. Investment A, a 12% equity stake in Brenner SA.
Waldes has no board representation, no contractual rights, and no other mechanism that would allow it to participate in Brenner's financial or operating activities. तो clear cut, this is a case of no significant influence. इसका accounting होगा investment in financial assets और कुछ बोला नहीं तो it will happen by the FVTPL method. Investment in financial asset FVTPL method दिख रहा है आपको? Investment A में there is no significant influence. Investment in financial asset FVTPL method unless they decide to use the FVOCI method. They can decide. Nikita, Vivek, Nayan, very good. Investment B, 35% equity stake, 20 को क्रॉस कर गया. In Castle GmbH, Waldes holds 2 of 5 board seats, 40% board को कंट्रोल करता है. Routinely participates in decisions on capital allocation and strategic direction. तो इन्फ्लुएंस करता है. इन्फ्लुएंस करता है तो कौन सा मेथड? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इक्विटी मेथड. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, ओके, इक्विटी मेथड. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इक्विटी मेथड. Investment C, a 51% equity stake in Dunmore Limited. Waldes has the unilateral power to direct Dunmore's financial and operating activities. खुद राजा है. That's full consolidation. It is business combination, full consolidation. Okay, business combination, full consolidation. Investment D, a 50% equity stake in LNNV. A separate entity holds the remaining 50% and all significant strategic decisions require the consent of both the shareholders. It's a case of JV. We apply the equity method. It's a case of JV. We apply the equity method. The CFO is also aware that under the current effective IFRS framework for financial instruments, certain classification terminology that existed under the prior standard have been removed entirely. Available for sale word use होता नहीं है आजकल, ठीक है. Held to maturity word use होता नहीं है आजकल जो पहले use होता था. Under IFRS, the primary basis for classifying an intercorporate investment is under IFRS, the primary basis for classification of intercorporate investment is the primary basis. सबसे primary basis क्या है? The answer is option number C. The degree of influence or control the investor is able to exercise over the investee. Some people said A because उनको था कि bond है कि equity है. इसका रॉन्ग होने का रीज़न क्या है आपका बता रहा हूँ मैं, सुनिएगा, बता रहा हूँ. पहली बात तो है ये चैप्टर में क्या एमोटाइज्ड कॉस्ट FVOCI और FVTPL क्या लगता है ये वाला पार्ट कितना परसेंटेज ऑफ दिस चैप्टर? व्हाट डू यू थिंक? इस चैप्टर में जो एमोटाइज्ड कॉस्ट है FVTPL FVOCI इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द चैप्टर? नॉट मोर देन 5%. So where is the thrust of the chapter? The thrust of the chapter is towards business combination, is towards variable interest entity, is towards JV, is towards associate. That is the thrust of the chapter. Since अपने केवल लास्ट क्लास बॉन्ड वर्सेस इक्विटी किए हैं, therefore ऐसा कोई हालत में चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं बोलते. मैं लास्ट क्लास इंडिकेट कर रहा था इनकेस पता हो कि हम लोग जब फिक्स्ड इनकम पढ़ते थे ना लेवल 1 में, तो अपने जब कविनेंट्स पढ़ते थे वगैरह, तो इन दैट केस काफ़ी बार डिस्कशन होता था कि बैंक से लोन लिए और बैंक वाला अपना एक नॉमिनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठाया है. याद है? बैंक वाला एक नॉमिनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठाया है. आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट. तो बॉन्ड वगैरह से भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है वन इट इज़ पॉसिबल, ऑल्दो अपने टेक्स्ट में ऐसा गया नहीं है. तो सबसे मेन क्राइटेरिया जो ये लोग का है वो है कि भाई जो हम इन्वेस्टमेंट किए तो उस कंपनी का क्या कर पा रहे हैं. ओके, दैट इज़ द मेजर थिंग. एनीवेज, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द डिग्री ऑफ कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दैट द इन्वेस्टर इज एबल टू एक्सरसाइज, दैट्स द प्राइमरी बेसिस. Question 2. Based solely on the information provided, which investment would most likely be classified as an investment in a financial asset? याद ही आप लोग को कौन सा वाला था जिसमें इन्फ्लुएंस नहीं था? नो बोर्ड सीट्स, नथिंग वाज देयर. तो आंसर इज क्लियरली ऑप्शन नंबर सी.
Investment A, because Waldes holds less than 20%, 12% था, and lacks any mechanism for significant influence. Question 3. The CFO recalls that IFRS 9 eliminated two classification terms that appeared in the prior standards, IAS 39. Which pair of terms no longer appears? ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है. दिस इज रॉकेट बॉटम. ओके, इस तरह का चोमू क्वेश्चन डज नॉट कैन नॉट कम. तो क्या क्या टर्म्स पुराने वाले से हटा दिए, क्या क्या टर्म्स पुराने वाले से हटा दिए, वॉट ऑल दे हैव रिमूव्ड फ्रॉम द पुराना वाला. दे हैव रिमूव्ड ऑप्शन नंबर बी, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड टू मेच्योरिटी. ऐसा कोई टर्म्स अब नहीं है. ठीक है, बट दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन. एन इक्विटी एनालिस्ट इज कंप्यूटिंग रिटर्न ऑन नेट ऑपरेटिंग एसेट्स. तो ये मैं भूल गया था पढ़ाना. ओके, लेट मी कम टू इट. ऑल्दो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो बोला था एज बेस्ट प्रैक्टिस जो एनालिस्ट है ना, एनालिस्ट जब वो एक कंपनी का इवैल्यूएशन कर रहा है तो उसको कंपनी का जो ये इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है फाइनेंशियल एसेट्स में, उससे जो इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम पीएल में है, उससे जो रियलाइज्ड गेन या अनरियलाइज्ड गेन या लॉस पीएल में है, क्या उसको मिक्सअप करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये सब निकालना चाहिए या उसको हटा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना चाहिए. देयर इज अ सीमेंट कंपनी एंड दिस सीमेंट कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनीज, इन द शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज. तो वो बॉन्ड्स या शेयर्स का डिविडेंड, इंटरेस्ट वो सब पीएल में है. कुछ बेचा होगा तो रियलाइज्ड गेन, अनरियलाइज्ड गेन ये सब भी है. तो सीमेंट बिजनेस का परफॉर्मेंस अगर लेना है तो उन सबको तो हटाना चाहिए ना, तभी तो प्योर सीमेंट बिजनेस का परफॉर्मेंस आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपने को तो हटाना चाहिए उनका इफेक्ट, तब जाके सीमेंट बिजनेस का परफॉर्मेंस आएगा. इट इज़ बट ऑब्वियस. ठीक है, तो देखते हैं. एन इक्विटी एनालिस्ट इज कंप्यूटिंग रिटर्न ऑन नेट ऑपरेटिंग एसेट्स. ओके, साफ साफ लिख दे, रिटर्न ऑन व्हाट? नेट ऑपरेटिंग एसेट्स. तो दीज आर फाइनेंशियल एसेट्स, दीज आर नॉट ऑपरेटिंग एसेट्स. For Waldes AG and wishes to make the ratio comparable across peers. Which of the following adjustment is most consistent with the best analytical practice? तो ये accounts के ऊपर उठ गया है. Not talking about US GAAP IFRS, talking about best analytical practice. First option, exclude interest income, dividend, realized unrealized gain and loss related to financial asset investment from both the numerator and denominator of the ratio. Yes. ऊपर में जो रिटर्न है उसमें आप वो सब मत लेना, नीचे में जो नेट ऑपरेटिंग एसेट्स है उसमें फाइनेंशियल एसेट मत लेना. वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इंपॉर्टेंट. ओके, यूएस गैप आईएफआरएस के चक्कर में अपने को अपना वाला पार्ट भूल जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू कंप्यूट द प्योर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, you got to exclude the financial assets from net operating assets and exclude the income from financial assets from the return. ठीक है, तो this is question number 4 का A. Next question. Northern Bank AG is a German commercial bank that prepares its financial statement under IFRS. The bank's treasury committee is reviewing the IFRS 9 classification of 3 debt instruments held in its investment portfolio. Instrument 1, fixed rate sovereign bonds. The bank's formally documented business model for this portfolio is to hold the bonds until maturity and collect the scheduled coupon and principal payments. The bond's contractual cash flows consist solely of payment of principal and interest on the outstanding principal balance. कितना clean लिखा है. तो कैश फ्लो टेस्ट सेटिस्फाई कर दिया और बिजनेस मॉडल है उसको अपने होल्ड करेंगे टिल मेच्योरिटी. तो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट 1 में कौन सा मेथड यूज होगा? एमोटाइज्ड कॉस्ट मेथड. ओके, इंस्ट्रूमेंट 1 में एमोटाइज्ड कॉस्ट मेथड यूज होगा. वी आर गोइंग टू होल्ड इट टिल मेच्योरिटी, दैट्स द बिजनेस मॉडल, प्लस इट सेटिस्फाइज द कैश फ्लो टेस्ट. इंस्ट्रूमेंट 2, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. द ट्रेजरी कमिटीज डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव is both to collect contractual cash flows and to sell bonds opportunistically when liquidity need arises or when market prices are favorable. साफ साफ बोल दिया, we are holding it to collect and sell. We are holding it to collect and sell. ठीक है, the contractual cash flows are solely payment of principal and interest. It satisfies the cash flow test.
मैनेजमेंट हैज़ नॉट डेजिग्नेटेड दीज बॉन्ड्स एट FVTPL। ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। यहाँ पे लास्ट लाइन का तो एकदम भी दरकार नहीं था। तो इट्स ऑब्वियस दैट इट्स FVOCI। तो दीज क्वेश्चंस आर ऑफन इंटेंडेड कि आपको कोर रीड नहीं करना पड़े। इन क्वेश्चंस के हेल्प से वो कोर का बाप आपका प्रैक्टिस हो गया, और उसके बाद भी जिसको रीड करना है भाई रीड कर, तेरे पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम होगा। इंस्ट्रूमेंट 3, स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट नोट्स। स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट नोट्स याद है, कल बता रहा था मैं, MBS, ABS या कोई CDS क्रेडिट लिंक नोट है, whose contractual payments include a variable payment linked to the credit performance of a reference pool of third party loans। कोई pool है third party loans, उस पर CDS बेचा हुआ है। The bank's legal team has confirmed that the cash flows from these notes do not represent solely payment of principal and interest, so cash flow test is not satisfied। तो आपका intention से मतलब ही नहीं है, cash flow test is not satisfied, you will use FVTPL, पारदर्शिता। ओके, आपको नंगा नाच PL और बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज। ओके, यू हैव टू यूज पारदर्शिता, आपको नंगा नाच PL और बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ओके, separately, Norden's credit risk committee is evaluating a change in the bank's provisioning methodology for its loan portfolio in connection with adoption of IFRS 9। मैं जो बोल रहा था ना, इनकड मॉडल के बजाय एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, वो भी पूछ लिया है। Under IFRS 9, for a debt instrument to qualify for measurement at amortized cost, which two conditions must both be satisfied? रिविजन करवा रहे हैं कोर का, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोर। मेरा जो क्वेश्चंस मैं देता हूँ ना, दे आर अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोर। यस, आई बेट इट unnecessarily, still if you are reading core, that's stupidity। तो डेट इंस्ट्रूमेंट को अगर अपने को एमोटाइज कॉस्ट पे करना है तो क्या दो कंडीशंस है, कैश फ्लो टेस्ट है, बिजनेस मॉडल टेस्ट है। द बिजनेस मॉडल मस्ट बी टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट इन ऑर्डर टू कलेक्ट द कैश फ्लोज, and the contractual cash flow must consist solely of principal and interest on the outstanding principal balance। Option number B। Next, question number 2, based on the information provided, what is the most appropriate IFRS 9 measurement category for instrument 2? Instrument 2 तो वो था ना जिसमें होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, हम लोग कलेक्ट करेंगे पर बेच देंगे, लिक्विडिटी का नीड या अपॉर्चुनिटी हुआ तो हमने डिसाइड किया था इसका FVOCI, fair value through other comprehensive income, because business model is to both collect and sell। ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 का। क्वेश्चन 3, आफ्टर क्लासिफिकेशन द ट्रेजरी कमिटी कंक्लूड्स दैट द बिजनेस मॉडल फॉर इंस्ट्रूमेंट 1 हैज फंडामेंटली चेंज्ड। द बैंक विल नाउ एक्टिवली ट्रेड दीज सॉवरेन बॉन्ड्स rather than hold them to collect। The bank will now actively trade these sovereign bonds rather than hold them to collect। तो इंस्ट्रूमेंट 1 तो amortized कॉस्ट था ना, तो क्या रिक्लासिफिकेशन अलाउड है? यस सर अलाउड है, प्रोवाइडेड बिजनेस मॉडल चेंज हो, रिक्लासिफिकेशन अलाउड होता है बॉन्ड में। द बैंक विल नाउ एक्टिवली ट्रेड दीज बॉन्ड्स rather than hold them। तो ये लोग रिक्लासीफाई कर रहे हैं फ्रॉम amortized कॉस्ट टू FVTPL, रिक्लासीफाई कर रहे हैं फ्रॉम amortized कॉस्ट टू FVTPL, यानी जिस दिन रिक्लासीफाई कर रहे हैं उस दिन जो बाजार में फेयर वैल्यू है वो आ जाएगा, और उसके बाद से बैलेंस शीट में M2M होगा और PL में सारा गेन लॉस आएगा। अंडर IFRS 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द करेक्ट रिक्लासिफिकेशन ट्रीटमेंट? Reclassification is not permitted, wrong। The instrument is reclassified to FVPL, it is measured at fair value at the reclassification date with any resulting gain or loss recognized immediately in the PL account, and prior periods are not restated। Okay, prior periods are not restated, it's proactive, it's not retroactive। तो बॉन्ड में रिक्लासिफिकेशन अलाउड है। याद है कि कौन सा रिक्लासिफिकेशन बॉन्ड में अलाउड नहीं है? याद है कि कौन सा रिक्लासिफिकेशन बॉन्ड में अलाउड नहीं है? ओके, याद है क्या बॉन्ड में कौन सा रिक्लासिफिकेशन अलाउड नहीं है? ये रहा, ये था रिक्लासिफिकेशन का नोट्स अपना, मैंने वर्ड नहीं यूज़ किया था, लिख देता हूँ। दिस वॉज रिक्लासिफिकेशन। तो इक्विटी में चेंज ऑफ मेथड इज नॉट अलाउड, इक्विटी में। बॉन्ड में चेंज ऑफ मेथड इज अलाउड बट FVTPL टू OCI इज नॉट अलाउड। तो बोल रहा है कि अगर एक बॉन्ड को आप एमोटाइज्ड कॉस्ट पे दिखा रहे थे, एमोटाइज्ड कॉस्ट,
और अब आप FVTPL करोगे बिकॉज बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, बिकॉज इम्पॉर्टेंट बिजनेस मॉडल हैज़ चेंज्ड, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अलाउड है, यस अलाउड है, ठीक है। तो उस केस में वो बॉन्ड जो है, कल का फिगर्स मेरे को याद नहीं है, सपोज वो बॉन्ड 932 पे है और उसका जो फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू सपोज 880 हो गया है, तो इन दैट केस इसका जो 52 का लॉस इनकम स्टेटमेंट में आएगा। और अब से एंड अब से FVTPL, तो इट इज prospective not retroactive, it is prospective not retroactive। आज तक जो हो चुका सर 3 साल तक तो इसका ऐसे कर दिए थे, उसका क्या करें, कुछ नहीं करना है उसका। इट इज prospective not retroactive। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, द इंस्ट्रूमेंट इज reclassified to FVPL, it is measured at fair value at the reclassification date with any resulting gain or loss immediately to PL and prior periods are not restated। Important। So if you want to mark question number 3 of item set 2, please mark, please mark। Question number 3 of item set 2 need to be seen again। Question number 3 of item set 2 need to be seen again, please 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 mark। Class number 2, question number 3 of item set 2। Norden's Credit Risk Committee is comparing the provisioning approach required by IFRS 9 with the approach previously used by IAS 39। Which of the following most accurately characterizes the key difference? प्रोविजनिंग अप्रोच में जो डिफरेंस बताया था मैंने वो कहाँ लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में? IAS 39 ओल्ड वाला था, IFRS 9 नया वाला है। Yes, option number C, IFRS 9 requires companies to migrate from an incurred loss model to an expected credit loss model, incorporating forward-looking information and resulting in earlier recognition of impairment। ठीक है, पहले इनकर्ड लॉस मॉडल था, अब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल है जहाँ फॉरवर्ड लुकिंग के बेसिस पे अर्लियर इम्पेयरमेंट। याद है, परफॉर्मिंग एसेट पे 12 मंथ का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे लाइफ टाइम का एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजनिंग बनाते हैं। थर्ड आइटम सेट, मेरिडियन कैपिटल पार्टनर्स इज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म रिपोर्टिंग अंडर IFRS। At year end, the portfolio committee is reviewing the accounting treatment of 3 equity investments held in its treasury portfolio। Equity investment PQRP, ordinary shares in a public listed software company, shares है। The investment was purchased with the explicit intention of selling within the next several months to capture anticipated near-time price appreciation। No election was made at the time of acquisition regarding measurement category। तो मैंने बोला था इक्विटी शेयर्स अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपने इलेक्ट नहीं किया उसको FVOCI तो बाय डिफ़ॉल्ट FVTPL होगा, याद है क्या? इक्विटी शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो नॉन इन्फ्लुएंशियल इक्विटी, ठीक है, और अगर आपने इलेक्ट नहीं किया FVOCI तो बाय डिफ़ॉल्ट FVTPL होगा, याद होगा निकिता शाश्वत? इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और नॉन इन्फ्लुएंशियल है और अगर आपने इलेक्ट नहीं किया FVOCI तो वह FVTPL होगा बाय डिफ़ॉल्ट। Next, equity investment Q, an 8% minority stake in a privately held logistic firm। Meridian does not have the ability to exert significant influence over the logistic firm, no influence। At the time of acquisition, the portfolio committee made a formal documented investment by investment election to present all subsequent fair value changes in other comprehensive income। They elected, वो लोग डिसाइड कर लिए थे उस समय कि हम लोग इसको FVOCI में करेंगे, हम लोग इसका PL में नहीं लाएंगे। ओके, बट ये लैंग्वेज से क्या फ़ायदा होता है, आपको पता चलता है
ये जो लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन द पोर्टफोलियो कमेटी मेड अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट इलेक्शन। यही तो पहले बकेट अप्रोच होता था, आजकल इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट अप्रोच होता है। ओके, जहाँ पे यू हैव टू स्पीक आउट द बिजनेस मॉडल ऑफ एवरीथिंग। Equity investment are a 6% minority stake in a biotech startup purchased as a long-term strategic holding। यूसेन से साहब ने तो बोला था ये सब स्ट्रैटेजिक नहीं होता है। अरे वो जनरल मेरा उस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ थोड़ी है। एट एक्विजिशन मेरिडियन इलेक्टेड टू मेजर द स्टेक एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएल। पहले एफवीटीपीएल डिसाइड किया। द पोर्टफोलियो कमिटी इज नाउ कंसिडरिंग वेदर टू चेंज दिस क्लासिफिकेशन टू एफवीओसीआई, आर्ग्यूइंग दैट ओरिजिनल इलेक्शन नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट्स मैनेजमेंट इंटेंशन। अलाउड है क्या ये जो बोला है ये लोग एफवीटीपीएल डिसाइड किया था और उसके बाद ये लोग इसको एफवीओसीआई करने का सोच रहा है, ये अलाउड है क्या? ये अलाउड है क्या? एकदम भी अलाउड नहीं है। इक्विटी में चेंज ऑफ मेथड इज नॉट अलाउड, रिक्लासिफिकेशन इज नॉट अलाउड। ओके, रिक्लासिफिकेशन इक्विटी में अलाउड नहीं है। द फर्म CFO इज सेपरेटली प्रिपेयरिंग एन एनालिसिस ऑफ मेरिडियंस कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अंडर IFRS 9 व्हाट इज द रिक्वायर्ड मेजरमेंट कैटेगरी फॉर इन्वेस्टमेंट P? तो इन्वेस्टमेंट P जो था उसमें एफवीटीपीएल, बिकॉज शेयर्स बाई किया था और इलेक्ट किया नहीं। एफवीटीपीएल बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मस्ट बी मेजर्ड एट एफवीपीएल। ऑप्शन नंबर C। रिगार्डिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट Q, ये लोग तो इलेक्ट कर ही लिया था एफवीओसीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट? The FVOCI election for equity is irrevocable, yes, and cannot be reversed in any subsequent reporting period. I am with it. Equity में अपने classification change नहीं कर सकते, तो answer should be A. If equity investment Q is measured at FVOCI, अगर Q को FVOCI पे measure किए, which of the following correctly describes how income from that Which of the following correctly describes how income from that investment is recognized? All fair value changes are recognized in PL account. Wrong. Only dividend income is recognized in PL account. Changes in fair value are recognized as the comprehensive income. Right? Option number B होगा ना, dividend PL में आएगा और fair value changes OCI में जाएगा। The portfolio committee wishes to reclassify equity investments are from FVPL to FVOCI, not allowed, citing a change in management intention. Simultaneously, Meridian CFO proposes excluding all dividend income, interest income and unrealized gain and loss on financial asset investment when computing firm's core operating ratios. ये correct है कि आप exclude करके कंपनी का रिटर्न और नेट ऑपरेटिंग एसेट्स निकालोगे, एनालिटिकल बेस्ट प्रैक्टिस, बट फर्स्ट पार्ट इज नॉट अलाउड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द reclassification of equity is not permitted as the initial FVPL election for equity instrument is irrevocable. The CEO's approach of excluding investment related items from operating performance is consistent with analytical best practice. Yes. तो language is such that आप सीख रहे हो उससे, ठीक है? language को read करना चाहिए for the purpose of understanding. Okay, so that was it. एकदम easy part था, कोई झमेले का पार्ट ही नहीं था। So we have covered some portion of this chapter. We'll continue this in the evening today at 8 p.m. 8 p.m. में इसका थर्ड क्लास है, ठीक है? इवनिंग टुडे 8 p.m. इसका थर्ड क्लास है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम कहीं पे मिला मेरे को तो हो सकता है मैं बीच में कहीं पे करेंसी का भी एक क्लास ले लूँगा, ठीक है? आई डोंट नो, आई विल नॉट थिंक अबाउट दैट टाइम कि सर ऑफिस टाइम है, नॉन ऑफिस टाइम है। ओके, व्हेन आई एम इन अ फुल फ्लो, आई एम इन अ फुल फ्लो। पीपल मे डू इट हु कैन, अदर्स may do it recorded. ठीक है, चलिए, बाय बाय।